ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੂਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ NK ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। MD ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਇਆ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ MD ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਝੜਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਭੂਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਬਰਨਿੰਗ ਟੌਪਿਕ, ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਰੋਮਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਰੋਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂਖਮਤਾ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਲ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਸਾਇੰਸ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜੋ ਬॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ हैं, मतलब उसका ਦਾ रोल सबसे बड़ी तो ये अपना रोमकूप होते हैं, जो शरीर के अंदर से अंदर जो गर्मी या जो टॉक्सिन्स हैं जो पसीने के थ्रू निकलना होता है, तो वो इस रोमकूप के नाल हेयर रूट्स के नाल मतलब निकल जाते हैं, ताकि जो शरीर के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें खा लेंगे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें केमिकल से ले लेते हैं जो शरीर में सूट नहीं करते, तो शरीर के किसी न किसी रूप से निकल जाते हैं। तो इस रूल च इन्हों का बड़ा हुआ। दूसरा मतलब ये अपने ऑक्सीजन वगैरह हेयर रूट्स में भी आप मतलब शरीर में नमी बना करके रखते हैं, अपनी गर्मी को मेनटेन करने च भी इन्हों का बड़ा रोल होता है। बाकी ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲ ਮੈਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। बहुत अच्छी बड़ी प्रैक्टिकल गल पूछी है तुसी। एक्चुअली क्या है कि तजुर्बे नाल तो संबंध है, इदा पुराने ज़माने 'ਚ ਹੁੰਦਾ था, लेकिन ये उस ज़माने की गल है जब साढ़े को बहुत अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन, सारा खान पान सही होता है। आजकल का अपना जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से बदल गया है। मतलब जो जिस ज़माने की तुसी गल कर रहे हो, जो मतलब वो होंदे सी कि जैसे वो राजा दशरथ दा एक कहते ने कि भाई जब उन्हों का शीशे से देख रहे सी तो उन्होंने कान दे पूछे बाल सफ़ेद हुए, तब उन्होंने एकदम ख्याल आया कि यार मैं बुढ़ा हो रहा हूँ और मैनू मतलब अपना राज गद्दी हूँ किसी को देना चाहिए। तो ये थोड़ा गल मतलब यही है कि जब सफ़ेद बाल तभी होंदे सी। ये राजा दशरथ में इसलिए क्या है कि उन्होंने सब कुछ खान पीन मिलता है, वेल न्यूट्रिशन, तो इसलिए उन्होंने अगर बाल सफ़ेद हुए तो वो उम्र के हिसाब नाल। लेकिन आजकल जो तुसी गल पूछी है वो यही है कि आजकल लोगों के छोटे छोटे बच्चों के भी बाल चिट्टे हो रहे हैं। वो कई कारण है। पहला तो मतलब समझ लो कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, खान पीन जो है बच्चों के बहुत, खास करके नमक या नमकीन चीज़ां, खट्टी चीज़ां, एसिडिक चीज़ां, मतलब इस तरह की जो खा लेंगे बच्चे हैं, और ये जो जंक फूड वाली चीज़ें, फास्ट फूड वाली चीज़ां, ये बॉडी इन अंदर सब इतने कैमिकल्स होंदे हैं, वो साढ़े शरीर के मैकेनिज्म सिस्टम वो कर देते हैं। रूटीन च देखा जाए तो क्या है कि बालों लिए एक अच्छे प्रोटीन्स की जरूरत होती है। अगर थोड़े शरीर के अंदर पूरे एमिनो एसिड्स हैं, थोड़े बाल कदे भी टूटणगे नहीं, कदे वो नहीं होंगे। लेकिन होंदा की है कि आप मतलब
ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ एग्जांपल फास्ट फूड ਦੇ ਅਸੀਂ अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि ਤੁਸੀਂ एक छोटा सा जैसे अगर अपन घर 'ਚ आटा गूँथ के रखते हैं तो सुबह का रखा हुआ आटा शाम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਟੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। अब दूसरी पक्ष देखो तुसी कि ये फास्ट फूड वाले जिन्होंने मैगी बनाई है तो वो 6-6 महीने तक चली जाएगी, तो वो 6 महीने तक क्यों होंगी, उस तो आप बड़े स्वाद नाल खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, किसी को कोई एतराज़ भी नहीं और चली जा रहा है काम। तो उसका कारण क्या है कि उन्होंने उस मैगी को उस कंडीशन से लाने लिए इतने अधिक प्रिजर्वेटिव, इतने अधिक केमिकल रखे हैं जो आटे को सड़न तो रोक रहे हैं, लेकिन वो केमिकल जो उन बैक्टीरिया को रोक रहे हैं वो बाद जब अपने पेट 'ਚ जाएंगे तो अपन भी खराब करेंगे, अपन खराब भी करेंगे, दूसरा हजम भी नहीं होने देंगे, क्योंकि जब बाहर नहीं हो रहे हैं डिस्टर्ब करेंगे। बिल्कुल सही है, वो अपन डिस्टर्ब करेंगे तो अपने सारा केमिकल्स मतलब वो अपने बॉडी चले जाएंगे। तो एक तो पहला कारण मतलब जो बालों के चिट्टे होने का न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, मतलब जितने मैं माफ़ करना, मैं एक चीज़ मेरे दिमाग 'ਚ आई है, मैं ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇੱਕਦਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦੇ ਵੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਲਾਨਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੈਲਾਨਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਲਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਬਾਲ हैं ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। लेकिन जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਲਾਨਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟ कम होगा, ये मेलानिन भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है, न्यूट्रिशनल होता है, तो जिसके अंदर प्रोटीन कट होगा चाहे वो बच्चा है बड़ा है कोई भी है तो वो उस तो फिर उससे सफ़ेदी आ जाएगी। इवन कई बार स्किन के अंदर भी ऐसी कंडीशन हो जाती है तो वो उत्थे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता, दाग बन जाता, उसनों आप मोबिटी लिगो या सफ़ेद दाग इस तरह से कह देंगे, तो वो भी मेलानिन पिगमेंट की कमी से ही होता है। तो ये एक मतलब न्यूट्रिशनली जिससे भी पिगमेंट कमी होगा। बाकी और एक बड़ा मेजर कारण है हार्मोनल चैलेंजेस। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ पिट्यूटरी सिक्रेशंस है, थायराइड दी सिक्रेशंस है, तो ये जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स है शरीर दी, इन्हां दे सिक्रेशन जे वध हो जाए तां भी माड़े होंदे, घट जाए तां भी माड़े होंदे। तो एक संतुलित फार्म च बैलेंस फार्म च होना चाहिए। तो जिन्ना दे ये हो गया, ये वधे खड़ते अपने ये उल्टा सीधा खान पीन करके, जिहड़ी चीज़ें आपां नूं जितनी खानी चाहिए वो नहीं खाई। आपां कई बार क्या होंदा मीठा पसंद है तो वो इतना मीठा खाई जाएगा कि वो सारा अपसेट कर देगा, किसी को नमकीन में से बहुत ज़्यादा नमकीन खा लेगा, किसी को मतलब होर खट्टा पसंद वो खट्टा ही खट्टा खाई जाएगा। तो इस तरह की चीज़ है बालों के मामले च रूटीन से जो मेरे अपने ऑब्जर्वेशन से देखा मैं कि ज़्यादा नमकीन चीज़ा और ज़्यादा खट्टी चीज़ा, जोड़े भी बंदे मैं कई पेशेंट का ऑब्जर्व करके देखा है वो नमक बहुत खाते रहे उन्होंने बाल बड़ी चिट्टे हुए हैं, जोड़े बहुत खट्टी खाते रहे उन्होंने बाल भी बड़ी जल्दी टूटते हैं, खट्टे होंगे हैं। ये एक मतलब साडा रूटीन है ज़्यादा, एक कारण मतलब ये हो गया। इसके अलावा भी कुछ कारण होंगे, कुछ बंदियां जैसे मतलब रेशा बनता है, छिक्का आ रही है, जुकाम होंदा रहता कंटिन्यूस जुकाम, जैसे तुसी जो बच्चों वाले का थोड़े माइंड है ना, जनरली बच्चों को न्यूट्रिशनल तो मिल जाता है क्योंकि माँ प्यो आजकल इतने तो जागरूक हैं कि सारा कुछ खिला पिला देंगे हैं, बच्चे खा भी लेंगे हैं, लेकिन फिर भी मतलब उन्होंने बाल चिट्टे होंगे। तो उस बच्चे को कोई मतलब नक बंद हो गई, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई या पूरी तरह साह नहीं ले पाया या ਉਹਦੇ नाक के अंदर कोई इस तरह का सिस्टम मतलब ब्लॉक कर दिया उन्हें, तो वो रेशा उन्होंने काफ़ी देर तक इन्फेक्शन हो करके नाक ख़राब कर रहा है, गला ख़राब कर रहा है, कन्ना च खुरक हो रही है। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर होंगे हैं तो इन्हें सब तो ज़्यादा मतलब नाक बंद होना या छिक्का या जुकाम कंटीन्यूस बने रहने वाला, उन्होंने भी बाल चिट्टे हो जाते हैं। ये PCOD भी एक कारण हो सकता है। PCOD भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े अच्छी इंटेलिजेंसी वाला क्वेश्चन है। PCOD भी एक कारण होता है, लेकिन ये सिर्फ लड़कियां च होता है कि उन्होंने ऊपर चेहरे पे बाल आने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर क्या है कि हारमोन्स की कमी हो गई, जो मतलब लेडीज़ हारमोन्स होता है एस्ट्रोजन कहते सी, वो एस्ट्रोजन की कमी हो गई क्योंकि वो ओवेरियन सिस्ट बन गया तो उसने पूरा वो नहीं कराया, और उसी जगह मेल हारमोन्स है टेस्टोस्टेरोन वो बढ़ गया, तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाने करके उन्होंने मुच्छा निकल आएगी, दाढ़ी से बाल आ जाएंगे, फेस पे आ जाएंगे, तो वो और भी शरीर से भी और जगह भी बाल ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये PCOD भी एक कारण है, मतलब वो खास करके स्पेशली यंग गर्ल्स टीनेजर्स या इन्होंने बहुत होता है। वैसे चलो आजकल सभी होने लग गया है, लेकिन लेडीज़ का ही है स्पेशली उन्होंने PCOD का इस तरह का डिसऑर्डर मतलब होता है जिससे उन्होंने बाल ज़्यादा उगते हैं और वो उन्होंने कंडीशन के मुताबिक चिट्टे भी हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं। अच्छा, एक ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਲਾਨਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
देखो इस तरह है जी कि ਆਪਾਂ जनरली अच्छा सारा मतलब प्रोटीन्स वाली सारी चीज़ें अगर खाते रहते हैं ਆਪਾਂ जैसे बाल नहीं बादाम बहुत अच्छे होंगे हैं, काजू अच्छे होंगे हैं, अखरोट अच्छे होंगे हैं, पिस्ता अच्छा होता है, पनीर अच्छा होता है, तो हरी सब्जियां होंगे मतलब ये चीज़ें अगर आप खाते रहते हैं तो फिर अपन ਨੂੰ मतलब इन्हों की डिफिशियंसी नहीं आएगी। और फिर भी अगर जे तुसी दवाई के तौर पर कुछ जानना चाहते हो तो कुछ चीज़ें जैसे मतलब आंवला है, बहड़ा है, हरड़ है, वाइविडंग है और अपना जटामानसी है, नागरमोथा है और अपना लोहे ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ, ਇਹ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਤਾਣਾ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਰਬਸ ਜੋ ਬਤਾਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ये आप एक 24 घंटे की प्रोसीजर होंगी है। तुसी जैसे सवेरे मतलब ये मान लो सारी चीज़ें 25-25 ग्राम ले लो, 25 ग्राम आंवला, 25 ग्राम हरड़, 25 ग्राम बहड़, 25 ग्राम जटाबंसी, 25 ग्राम नागरमोथा, ये सारी और 25 ग्राम विटामिन, ये 6-7 चीज़ें हैं। ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ 100 ग्राम ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜੇ 25-25 ग्राम ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ग्राम ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬਰਤਨ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ लो और उससे करीब जैसे मतलब वो 100 ग्राम वो है तो उससे 3 गुना पानी डाल दो। वो पानी के नाल मतलब क्या है कि 24 घंटे जो सारा पानी उसे आ जाएगा, उससे जो आयरन एलिमेंट्स है वो पानी ਚ ਆ जाएगा, मतलब कलर काला ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद कि वो बूटियां ਨੂੰ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੁਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣ ਕੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੁਰਾਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ नहीं होता, उसका पानी निकाल के उससे मिला लें मिक्स करके, उसनों अगर मतलब उबाल करके ਉਹਦਾ गाढ़ा करके और उससे नाल अगर सिर धोए जाए, अगर लगातार ये 2-3 महीने करता बंदा अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट तो ਉਹਦੇ बाल काले हो जाए। 100% है मतलब 100% ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 50 ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਰੋ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, तो 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ मतलब पूरा असर करेगा ही करेगा। जो बाद वाले लोगों ਨੂੰ धीरे धीरे ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਚੇਂजेस शुरू हो जाते हैं उदों ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ असर करता है। लेकिन फिर भी ये जो ਆਪਾਂ बाहर से बहुत सारे जो कलर डाइज वगैरह लगाते जिन्हों की कई तरह के रिएक्शनस होंगी है, इन्हों के कई एलर्जी हो जाती है और कई तरह के मतलब कॉम्प्लिकेशन स्किन के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ना, तो वो अपन उससे बचाव भी रहेगा, तो कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ये ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਖਰਾਦ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ सारी दुकान से मिल जाएगा, जो जड़ी बूटियाँ बेचते हैं उन्होंने को बरादा होगा। हाँ हाँ, बरादा उधर कहोगे लोहे का बरादा चाहिए मिल जाएगा, मिल जाता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो भी जड़ी बूटियाँ वगैरह तो सामान धंधा करते हैं ना, उन्होंने को मिल जाएगा। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ? भाई देखो ये मैं बताया ना तुम्हें कि उसने कॉम्बिनेशन 24 घंटे आप मतलब जैसे सवेरे भिगो के रख दो, सारे वो हो जाएंगे, दूसरे दिन सवेरे उन्होंने बूटियां सारी मसल करके मुँह निकाल लिया, उदा पानी फिल्टर करके रख लिया, इधर लोहे का बुरादा छान के उसमें दोनों ने मिला लिया, फिर उन्हें उबाल करके थोड़ा अद्धा कर लो उसमें और वो काढ़ा बालों में लगाओ, बाल खोल के बालों की जड़ा में अच्छी तरह से लगाओ और करीब घंटा 2 घंटा लगे रहने दो। उसके बाद फिर अपना नहा लो, फिर धीरे धीरे लगातार तुसी अगर ये करते रहते हो, हफ्ते 'ਚ 2 दिन 3 दिन भी कर लेंदे हो तो थोड़े बालों का शुरू हो जाएगा। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? पहली बार से तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो रूटीन पिगमेंटेशन मतलब उन्हें इम्प्रूव करेगा, जो स्टिमुलेशन मिलेगी तो धीरे धीरे मतलब होगा। एक पहली बार से तो नहीं होगा, लेकिन अगर 5-7 बार अगर करता है तो फिर उन्हें फ़र्क पड़ेगा। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 5-6 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ क्या ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ और डिसऑर्डर्स ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, मतलब ਜੇ
केवल पिगमेंटेशन कम हुई है तो वो ਆਪਾਂ मतलब इस काढ़े ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मतलब फ़र्क पड़ जाए। लेकिन अगर उन्होंने कोई जैसे रेशा वगैरह की तकलीफ है, कोई थायराइड वाली डिस्टर्बेंस है, या कोई उन्होंने मतलब ऐसे किसी चीज़ की घाट हैगी शरीर से, कैल्शियम मैग्नीशियम इन्हों की, तो वो भी मतलब अपन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट थोड़े लेना पड़ेगा। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਵਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? देखो जी, बाल झड़ते उन्होंने रोकने लिए भी सबसे ज़्यादा तो कारण मैं देखा है कि नमक है। नमक सब तो ज़्यादा, हाँ आयोडाइज हो चाहे कोई सा भी हो, सेंधा नमक भी वो भी ख़राब कर दी है। मतलब नमक दी बॉडी दे मतलब मेडिकल साइंस ने एक डोज फिक्स कर रखी है कि अपन ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ग्राम 24 घंटे 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा 3 ग्राम मतलब एक छोटा चम्मच। लेकिन आप इस तो कितने ਵੱਧ आप एक के बार च दही च मिला के खा लेते, स्प्रे कर लेते, किसी न किसी रूप च आप मतलब बहुत लोड तो ਵੱਧ खा लेते हैं। जिन्नी देर तक बॉडी एडजस्ट करती जाती करी जाती धक्की जाता, मशीन काफ़ी अपनी गॉड की हेल्प करती रहती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती कि वो फिर ओवर हो जाता, तो फिर वो साइड इफेक्ट हो जाते। फिर किडनी भी खराब कर दो, किडनी तो फिर बहुत ज़्यादा हो आगे चल के करेगी वो भी करेगी। मतलब नमक की वरतों, और जो मेरे अपने तजुर्बे च अचार, खट्टी चीज़ां, बहुत ज़्यादा नींबू पीना, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसे केमिकल वाले खट्टे सिरका वगैरह या इस तरह की चीज़ें अगर लेवाएंगे तो ये चीज़ें भी ज़्यादा वरतों करने अपन को मतलब वो होती है। इससे अलावा मतलब अगर हार्मोनल चेंजेस कुछ हो गए हैं तो वो भी उससे कारण हो सकते हैं। बाकी मेरे अपने बाल झड़े हैं, मैं उसका भी तुम्हें बता दें। मैंने स्विमिंग का शौक है, तैरने का बहुत शौक है। मैं MD जामनगर तो की है, आयुर्वेद का PGI है जामनगर के इंडिया। जब मैं पढ़ता से एक कोई PGI होंदा सी इंडिया च, तो मैं उतों का पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। उतों नेशनल लेवल का एडमिशन होंदी सी, मैं आई डिड दैट था। और वो समुद्र किनारे है जामनगर, तो मैंने शौक सी मतलब तैरन का। तो नमकीन पानी होंदा, हाँ, तो समुद्र का पानी बहुत खारा होंदा है। उदों चलो बेशक चलो ठीक है, मैं डॉक्टर बन गया, पर मैं कहता यार कोई बहुते गौर नहीं किया, अपने आप को इग्नोर कराया। और समुद्र किनारे नहाने लिए रोज़ मैं घंटा घंटा नहाया करता सी, काफ़ी तैरते थे। तो बाद च देखा नट में केवल मेरे अकेले नहीं, मेरे नाल जितने भी बड़ और मेरे साथी MD च पढ़ते थे ना, सारा दे बाल करीब करीब उड़ गए या चिट्टे हो गए। तो ये मतलब अगर अपन नमक का इन्ना इफेक्ट है, नमक का बॉडी ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ भी नुकसान करेगा। तो जे अंदर जाएगा तो कितना अंदर जाएगा नुकसान, मतलब बाहर लगने नाल मतलब मेरे जो नुकसान हुए ना, मेरे भी कुछ चलो थोड़ा बहुत हेरिडिटरी भी होया। बाकी दूसरे मेरे को दूसरा डिसऑर्डर भी था, नमक भी बहुत खांदा सी मैं। पहले दिन नहीं पता सी, उदों खा लेंदे सी, शौकीन लगता सी, नमक भी बहुत खाता रहा हूँ मैं। तो नमक भी खाया और बाहर से भी नमक लिया, समुद्र के पानी च नहाना करना, हफ्ते च एक दिन घंटा 1.5 घंटा तैर लेंदे सी, तो बहुत हो जाता। तो इस करके काफ़ी दिक्कत आ जाती सी। तो ये भी मतलब एक फैक्ट मतलब वो हो जाता है। बाकी अगर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर अपने पूरे हैं फिर सही रहेगा। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PCOD ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ COD ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, COPD ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ, इन्हों का भी इलाज करना पड़ेगा। इन्हों का आयुर्वेद च भी इलाज है। उन्होंने जो हारमोन्स वाली जो चीज़ है, मेल हारमोन्स को रिड्यूस करके, और जो फीमेल हारमोन्स हैं एस्ट्रोजन वगैरह को बढ़ाने वाली दवाइयाँ होंगी है साढ़े को, जिन्हों के नाल मतलब आजकल बहुत अच्छे फार्म च आ रही है दवाइयाँ, बढ़िया सोने सोने कैप्सूल वगैरह आते हैं, गोलियाँ टैबलेट शुगर कोडेड, जिन्हों कोई खान पीन च भी कोई औखा नहीं। सिरप वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि आप बहुत काढ़ा वगैरह ही पिए, बहुत अच्छी ईजीली चुएबल और ईजीली पेलेटेबल मेडिसिन आ रही है। तो वो थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं और वो ठीक हो जाएगा, तो अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ 35 ਸਾਲ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ऐसा पूरा फॉलो करता है तो 6 महीने के अंदर अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मतलब 6 महीने तक कर लेता है। अगर कोई मतलब उससे कोई बहुत ऐसा मेजर डिसऑर्डर टाइप हो, बहुत ही ज़्यादा कि कोई ऑर्गन सी डैमेज हो गया, कोई किडनी डैमेज हो गई, या कोई ऐसा हो गया, तो वक्री गल है। अदरवाइज ये रूटीन से मतलब खान पीन न्यूट्रिशन या हार्मोन्स करके है, तो वो सब अगर बैलेंस कर लिया जाए तो देर इज ए पॉसिबल हो सकता है।
ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ, थायराइड पैराथायराइड हारमोन्स वगैरह होंगे इन्हों के करा लो, पिट्यूटरी ग्लैंड के टेस्ट करा लो, और किडनी के करवा लो, अपना यूरिया क्रेटिनिन ये करवा, हाँ सीरम क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया इन्हों के करा लो। बाकी लेडीज़ जो FSH होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH होता है, हाँ कंप्लीट वो मतलब जो हार्मोन जो है लेडीज़ वाले फीमेल हार्मोन्स उनका मतलब सारा टेस्ट करा लो। अगर वो बैलेंस है तो सारा काम सही हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर उन्हें सेट करना पड़ेगा। यानी कि तुसीं ये कह रहे हो कि 6 महीने के अंदर अंदर वाल जिहड़े ने वो काले हो जाणगे, लेकिन उस तो पहलां जिहड़ा तुसीं ये तरीका दस्सिया उहदे नाल जिहड़े ने वो बैलेंस कर देगा ते 6 महीने दे विच जे इलाज पूरा करके इहनूं करदा तां वाल कुदरती काले हो जाणगे, दोबारा दवाई लाउण दी लोड़ नहीं पैणी है। एक्चुअली क्या है, साडा जो आयुर्वेद का फार्मूला है निदानस्य परिवर्जनम, जो निदान है मतलब ट्रीट द कॉज, जो कॉज है वो तो पहले सबसे पहले आप कारण में दूर करना है। जो कारण पता लग गया कि भाई ये न्यूट्रिशन करके या हार्मोन्स करके है या ये खान पान करके मतलब गलत खान पान करके है, अगर वो तीनों कारण दूर हो गया तो फिर बॉडी अपन को रिकवरी का मौका देती है और उसका फायदा उठा करके आप जो डिफिशिएंसी दूर करके इसको कर सकते हैं। अच्छा, हुण एक छोटा जिहा टोटका सानूं दस दो दर्शकां नूं भी वाल काले करने ने तो एक सिर्फ इन्ना क काम कर लो तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। देखो जी, आज वैसे अगर देखा जाए तो कच्चा नारियल, नारियल की कच्ची गिरी है ना, अगर बंदा रूटीन च खांदा रहे तो उन्होंने बालों की सब तो कम डिसऑर्डर्स होणगे। तुसी हुण मैं एग्जांपल बता दें प्रैक्टिकली मेरा कि तुसी साउथ इंडिया पर जाते हैं, केरलियंस वगैरह इन्होंने सब दे वाल घुंघराले भी होंगे और जनरली उत्थे बहुत कट गंजे मिलणगे जितने अपने नॉर्थ इंडिया मिलते हैं। उसका कारण क्या है, मैं बड़ा सोचा, मैं अपने हिसाब नाल ही देखा मैं तो कि वो लोग नारियल बहुत खाते हैं, खूब नारियल मेन फसल भी है, नारियल खाते भी खूब है, पानी भी पीते हैं, तो वो उतने न्यूट्रिएंट्स खास करके हेयर ग्रोइंग न्यूट्रिशन उन्होंने पर्याप्त मिलते रहते, उन्होंने कदे भी मतलब वो नहीं, जनरली उन्होंने बाल बड़े सोने और सभी मिलेंगे, चाहे किसी भी मतलब उसके देख लो कि किसी काफ़ी उम्र वाले लोगों के भी बाल काले रहते हैं। अच्छा, यानी नारियल खाना ही है कि उसका पानी पीना है या की करना है, वो मतलब ਇਹਦੇ ਚ दोनों चीज़ें ठीक है। अगर नारियल का पानी सूखा मिल जाता है वो भी ले लो, नहीं मिलता है तो आप कच्चे गिरी नारियल दी वो खाते रहो। नारियल वो कच्चा नारियल तो मिल ही जाता है, तो वो उससे नारियल की गिरी होंगी ना सफ़ेद वाली, वो आप मतलब खाते रहिए, मतलब हफ्ते च एक नारियल कम से कम खा ले बंदा। हफ्ते च एक कि रोज़ एक दिन? एक नारियल पॉसिबल नहीं है खाया जाना, प्रैक्टिकली मुश्किल भी होती है, मतलब थोड़े थोड़े टोटे करके रख ले, हफ्ते एक हफ्ते एक नारियल भी खा ले तो मेरा अनुमान है कि वो भी कम बढ़ जाएगा। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू, धन्यवाद जी कुलवंत सिंह जी, तुसी बड़ी अच्छी गल करी है और मैंने उम्मीद है कि लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और जितना ज़्यादा फ़ायदा होंगे मैं अपने आप में सफल मानूंगा। जी जी, बहुत धन्यवाद। तो ये सन डॉक्टर NK शर्मा, MD आयुर्वेदिक काया चिकित्सा दे माहर ने, प्रोफैसर रिटायर ने आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला तो हॉस्पिटल भी है उत्थे, तो वो प्रोफैसर रहे ने, पढ़ाते रहे ने डॉक्टरों को अगे, तो काफ़ी तजर्बा है इन्हों का, तो हुण रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट तो बाद भी ये जोड़े ने वो लोगों की मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। तो अज आप इन्हों नाल गलबात की है कि वाल काले तो चिट्टे क्यों हो जाते हैं, तो पिछे की कारण ने, ये वाल झड़न क्यों लग पैंदे ने, उन्होंने कैमिकल के नाल जो आप करते हैं तो किस तरह दी जिहड़े साडी बॉडी दे विच जो खराबियां आए तो उन्हों तो बचन लई साडे कोल की तरीका हैगा जिहड़ा कि असी कुदरती ढंग तरीकों के नाल जड़ियां बूटियां दे नाल जिहड़ा असी अपने वालों नूं काला करिए ताकि वो बॉडी नूं खराब भी ना करन ते कुदरती तौर दे उत्ते सदा लई काले हो जाण। सो तुहानूं ये गलबात किवें लगी, अपनी राय सानूं साडे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जेकर वीडियो चंगी लगी है तो इसनूं लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ताकि होरां नूं भी इसका फायदा होवे। साडे चैनल नूं लाइक ते सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। अगली बार फिर हाज़र होवांगे एक नवे मुद्दे एक नवे मेहमान दे नाल। उदों तक मैनूं दिओ इजाज़त। धन्नवाद।